bank reconciliation statement. So first of all, we will discuss why do we prepare bank reconciliation statement. There are two documents and both the documents belongs to the same person, the cash book and the passbook. Cash book is maintained by the customer and passbook is maintained by the bank. Passbook is also known as bank statement, and in cash book we will discuss only about the bank column cash book. Here cash column is ignored. So when the balance of cash book and the balance of passbook shows differences, that difference has to be removed by preparing bank reconciliation statement. So दोनों डॉक्यूमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं? कस्टमर को बिलोंग करते हैं. सेम कस्टमर का दोनों डॉक्यूमेंट है, कैश बुक भी और पासबुक भी, बट दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है. सपोज द बैलेंस ऑफ कैश बुक, balance CD of your cash book shows 5,000 and the bank statement shows balance as 6,000. Okay, there is a difference of 1,000. As both the documents belongs to the same person, then why there is difference in the balance of the two documents? So that difference has to be removed by preparing bank reconciliation statement. If we start with the cash book balance, our answer will be passbook balance. Okay, and passbook से start करोगे, so answer क्या आएगा? cash book का balance आएगा. अब ये difference क्यों आते हैं, इसको अभी हम लोग discuss करेंगे. Suppose कि 2,000 rupees deposited by a customer directly into your bank account. So पासबुक में तो बैलेंस दिखेगा, बट कैश बुक में उसका एंट्री नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पे डिपॉजिट में दिख रहा है, सपोज करो 1,000 डिपॉजिटेड बाय आवर कस्टमर राम, श्याम, मोहन, व्हाटएवर इट इज. ओके, सपोज मोहन हैज डिपॉजिटेड 1,000. ओके, बट यहाँ पे उसका एंट्री नहीं हुआ है, कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ है. तो यहाँ तो डिपॉजिट और पासबुक जब डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट होता है, विड्रॉल में डेबिट होता है, और कैश बुक में जब डिपॉजिट होता है सो वो डेबिट साइड होता है. मींस डिपॉजिट दैट इज रिसिप्ट will be shown in the debit side and in the credit side we show all the withdrawals, means payments, and then we get the balance. So यहाँ 1,000 deposit हुआ है by Mohan, one of our customer has directly deposited into our account, but cash book में उसकी entry नहीं हुई है. तो यहाँ पे difference आएगा, कितने का difference आएगा? 1,000 का difference आएगा. Passbook will increase by 1,000 and cash book will decrease by 1,000, right? Second example, suppose bank charges 200 rupees from our account. So bank charge किया, ठीक है? Bank charges charged by the bank. You know, the bank also work as an agent for its customer. So bank charges some charges like suppose it charges 200 rupees from our bank account, okay, from our passbook, okay, so that will be shown in the withdrawal column, but this entry is not maintained in the cash book. So again there will be difference of rupees 200. Passbook will decrease by 200 and cash book will be increased by 200. So these differences will be removed by preparing bank reconciliation statement. Suppose a check is issued by Mr. Mohan. Okay, check is issued. So check issued means amount is paid to Mr. Ram 2,000. But this is not paid by the bank. So here the entry of Ram, Mr. Ram is not maintained here in the passbook. Okay, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ 2,000 से डिक्रीज दिखाएगा और यहाँ 2,000 से इंक्रीज दिखाएगा. तो इस डिफरेंस को हटाने के लिए फिर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने हैं. तो
में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है. सपोज आई डिपॉजिटेड अ चेक फॉर इनटू द बैंक, सो आई हैव रिकॉर्डेड हियर, मैंने 5,000 रुपए डिपॉजिट किया into my account. I deposited into my account 5,000 rupees. So I have recorded in the debit side of my cash book as it is maintained by the customer, as it is maintained by me. But that record is not shown in the passbook. Why? Because I have deposited today, but the bank has not yet credited into the account. So पासबुक में उसका कोई डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ तो इंक्रीज दिखाएगा बट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज दिखाएगा. तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में. सो हम लोग इसलिए क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे कि जो बैलेंस आया है वो करेक्ट बैलेंस दोनों का दिखना चाहिए, सेम बैलेंस दिखना चाहिए, राइट. आइदर दोनों का बैलेंस 5,000 हो या फिर दोनों का बैलेंस 6,000 हो, राइट. इसके लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. बट उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. फर्स्ट थिंग इज कि कैश बुक डेबिटेड का मतलब क्या होता है, ओके, एंड कैश बुक क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है. क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि कैश बुक डेबिटेड, बट सपोज इफ यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक डेबिटेड, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, राइट. एंड कैश बुक क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो फिर मिस्टेक्स हो सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में, राइट. तो उसके पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैश बुक डेबिटेड का मतलब क्या होता है. कैश बुक डेबिटेड का मतलब होता है डिपॉजिट, ओके, इट शोज फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस. और कैश बुक क्रेडिटेड जब होता है इट शोज विड्रॉल, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस. सिमिलरली पासबुक के लिए भी होता है. पासबुक क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, सपोज इन द क्वेश्चन इट इज रिटन कैश पासबुक क्रेडिटेड, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, तो पासबुक क्रेडिटेड का मतलब होता है डिपॉजिट, ठीक है. और पासबुक जब डेबिटेड होता है इट मींस विड्रॉल, ओके. सो ये आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज समझना मस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि कैश बुक और पासबुक अगर डेबिटेड और क्रेडिटेड के सेंस में दिया हुआ है तो आप क्या समझोगे, ठीक है. तो कैश बुक में जब डेबिट होता है तो डिपॉजिट होता है, लेकिन पासबुक में जब डेबिट होता है यानी कि विड्रॉल होता है, अमाउंट चार्ज फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. आपका बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है कि अकाउंट आपके अकाउंट से पैसे चार्ज हुए हैं, ओके, डिडक्ट हुए हैं. और पासबुक क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं, मींस आपका बैंक अकाउंट में पैसे इंक्रीज हुए हैं. लेकिन कैश बुक में जस्ट उसका रिवर्स होता है. कैश बुक में क्या होगा, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब विड्रॉल करते हैं तो क्रेडिट होता है. एंड यू नो कि कैश बुक इज अ रियल अकाउंट. So here we will apply the rule of real account. Real account का क्या रूल होता है, debit what comes in, credit what goes out. So cash book is maintained on the same real account rule, that is debit what comes in and credit what goes out. आप देख भी सकते हो, इस साइड में हमारा डिपॉजिट होता है, इस साइड में हमारा पेमेंट्स होता है. So अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है. ये कंपनी या बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितने हैं. हम लोग ईयरली भी बना सकते हैं और हम लोग मंथली भी बना सकते हैं. तो सपोज करो कि इसको हम लोग मंथली बना रहे हैं, दैट इज ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ओके. ऑन 31st दिसंबर या 30 सितंबर, कोई भी डेट जो क्लोजिंग मंथ्स का है उस डेट को हम BRS बना रहे हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, वी विल टेक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है. हम लोग अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेंगे एंड कैश बुक का बैलेंस क्या दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस. जस्ट अभी इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैश बुक डेबिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिपॉजिट होते हैं, ओके. सो कैश बुक का जब कैश डेबिट बैलेंस ले रहे हैं इट मींस कि क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ, इट मींस इट शोज प्लस बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस.
सो जो भी बैलेंस गिवन रहेगा उसको हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमारा जो फॉर्मेट रहेगा यही रहेगा, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, वेरी इजी फॉर्मेट। सो बैलेंस एज पर जब कैश बुक से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक में आएगा, ठीक है। कोई भी बैलेंस हम लेके चल सकते हैं। सो पासबुक के बैलेंस आएंगे आंसर हमारे यहाँ पे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, पासबुक बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सपोज नोट क्या लिया हुआ था, 5000 कैश बुक का बैलेंस लिया था, तो 5000 यहाँ पे होगा, और जब पासबुक का बैलेंस आएगा तो कितना आएगा, 6000 आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 6000। अगर इस बैलेंस को मैं लेके चलती तो आंसर मेरा क्या आता, 5000 कैश बुक का बैलेंस आता। पासबुक लेके चलोगे तो आंसर आएगा कैश बुक में, और जब कैश बुक लेके चलोगे तो आंसर आएगा पासबुक में, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।